Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to the Youth Games Council India National Sports Award 2024. It's an absolute honor to have all of you here this evening as we have gathered to spirit of sportsmanship, dedication, and excellence in Indian sports. Tonight, we are not recognizing the achievement of athletes, coach, and sports contribution, but also celebrating their hard work, perseverance, and countless hours they have devoted to their craft. These awardees have not only made their marks in the field of sports, but have also made their inspiration to the youth of our nation. We are very privileged to have among us the most of our extreme guests, including our chief guest, Shri Shailesh Kumar Singh Ji, MLA and President, Uttar Pradesh Taekwondo Association, and Dr. Rajan Singh, and the other two chief guests who will be joining us in a minute, in some time, IRS Sahil Seth, Joint Commissioner, GST, Custom and Narcotics, and Swagar Kumar, social activist. So without further delay, let's dive into the evening filled with inspiration, achievement, and celebration. Welcome to the YGCI National Sports Awards 2024. I request our organizer, Aryan, to facilitate the chief guest with a bouquet and a shawl. Our chief guest, Dr. Rajan Singh, with a bouquet and shawl. With this, I call upon to the organizers and chief guest for the lamp lighting ceremony. Thank you so much, sir. Now, I would call upon Joint Secretary Atul Raghav for the welcome speech. Good evening, distinguished guests, respected athletes, coaches, and everyone present here today. As the Joint Secretary of Youth Games Council India, it is my immense pleasure to welcome you all to the YGCI National Sports Awards 2024. Tonight, we celebrate not only achievements, but also tireless efforts, perseverance, determination, sportsmanship that these athletes and coaches have demonstrated throughout the year. I would like to extend my gratitude to our esteemed chief guest, Shri Shailesh Kumar Ji, MLA UP and President Uttar Pradesh Taekwondo Association, Shri Rajan Ji, Basti Vikas Kendra Chairman, and all other dignitaries. Your support inspires all of us and further strengthens the foundation of sports development in India. Sports is not just a game. It's a path of self-discipline, resilience, and growth. To our athletes and coaches, let this evening be a reminder that success is not the determination, but the journey. I encourage all of you to continue striving for the greatness and inspiring the nation with your passion for sports. Once again, I thank everyone for being here and contributing the success of the event. Thank you. Thank you for addressing the audience and welcoming all of us. अब मैं चाहूँगी श्री शैलेश कुमार सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ ताकि वह उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए और युवाओं को सशक्तिकरण में खेलों के महत्व पर अपना विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई राजेंद्र जी, हमारे राणा अमर सिंह जी,
आर्यन प्रताप जी, अतुल राघव जी, सागर जी, हमारे संचालिका और जिनके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सभी हमारे ऐसे देश के होनहार नौनिहाल हमारे प्यारे बच्चों, उनके सभी अभिभावकगण, हमारे पत्रकार मित्रों, साथियों, आज हिंदुस्तान एक परिवर्तित हिंदुस्तान आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना रहा कि विकसित भारत बनाने का, इस क्षेत्र में हम लोग हर तरह से जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा क्षेत्र है, उन सब में हम अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करें। पहले कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज इस कहावत को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तित किया। आज हम हर तरह से कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब भी नवाब बनेंगे और खेलेंगे कूदेंगे तब भी नवाब बनेंगे। आज इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ हैं, अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके हम लोग अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। आज हमारे जो इस क्षेत्र में हमारे युवा हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, तमाम तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही हैं। आज हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ के अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करते हुए हम अपने बच्चों को उनका एक करियर सुधारने का काम कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं और देश की जो हमारी प्रतिभा है उसको निखारने का भी काम कर सकते हैं। आज इस क्षेत्र में मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और पूरे हमारे 140 करोड़ देशवासियों का, जिन्होंने इस क्षेत्र में भी और एक विकसित भारत बनाने में हम सबका सहयोग किया है। हम सब मिल कर के इस भारत को एक ऊंचाइयों तक ले जाएं, यही हम लोगों की कामना है, यही हमारी आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है, इल्तिजा है कि हम सब मिल कर के इस अखंड भारत को और मजबूत करें। जात पात धर्म मजहब का जो भेदभाव है इसको ख़त्म करके, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि 3 चीज़ें, स्पोर्ट्स, कल्चर और आपके यहाँ स्टूडेंट लाइफ, 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई जात पात नहीं देखी जाती। हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं जनरल सेक्रेटरी था, वहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद हम लोग क्षेत्रीय राजनीति में आए। विधानसभा हमारी बहुत दूर है, बलरामपुर, लेकिन आज इस अखंड भारत में एक जो गौरवशाली इतिहास इसका बन रहा है, उसमें हम सब लोग साक्षी हैं कि आज भारत मजबूती की ओर विश्व पटल पर एक अपनी प्रतिभा को निखारने का हर क्षेत्र में, हम जब 2014 में आए थे तो हम लोग देश की 17वीं अर्थव्यवस्था थे, लेकिन आज हम लोग विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 2029 आते आते विश्व की हम 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और 2047 तक भारत एक विकसित भारत के रूप में परिवर्तित हो। यही जो सपना है, इन्हीं को हम सब लोग मिल कर के आगे बढ़ाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो कल्चर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में हम लोग मिल कर के आगे बढ़ें और भारत माता का जो सर है उसको ऊंचा करें। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपने आयोजकों का, कि यहाँ पर बुला करके जो इनका आदेश था हमारे सभी छोटे भाइयों का कि हम लोग अगर यहाँ हैं तो आकर के आप सबसे रूबरू हों, आप सबके साथ मुखातिब हों, आप सबसे चर्चा करें। मैं पुनः आयोजकों का और यहाँ पर बैठे हुए सभी जनमानस का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। For telling us the importance of sports and the way we are united with sports. Thank you. अब मैं डॉक्टर राजन सिंह से अनुरोध करूंगी कि वह मंच पे आके कुछ शब्द बताएं। सम्मानित मंच, आज सबसे बड़े बधाई के पात्र आप लोग। ये जो भारत सरकार आज गांव-गांव के अंदर में
प्रतिभाओं को चुनने का काम कर रही है। आप में से कुछ लोग फुटबॉल खेलते होंगे, कुछ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ लोग ताइक्वांडो खेलते हैं, कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, और अपनी मेहनत से किस तरीके से हमारे देश का नाम ऊंचा हो, इसके लिए काम करते हैं। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोगों के लिए यहां से ताली बजाता हूं। हमारे देश के अंदर प्रतिभा की कमी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां पर इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गांव गरीब किसान के बेटे आज चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री हो गए, और उन्होंने उस गांव के दर्द को समझते हुए देखा कि गांव के अंदर जो खेलने वाली प्रतिभाएं हैं उनको कैसे आगे लेकर जाया जाए। तो उसके लिए आज भारत सरकार का युवा खेल मंत्रालय भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे आदरणीय विधायक जी तो स्वयं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बड़े नेता रहे हैं, हम लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये सिर्फ पुरस्कार जो अब आप लोगों को मिल रहा है, ये सिर्फ पुरस्कार पे हम लोगों को यहीं नहीं रुकना है, बहुत आगे जाना है। भारत को ओलंपिक में, भारत को इंटरनेशनल गेम्स में आने वाला भारत का फ्यूचर यहां पर बैठा हुआ है, और हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग आगे चल के भारत का नेतृत्व करेंगे, और हम लोग फिर से आपके लिए टीवी पे देखते हुए ताली बजाते रहेंगे। यही तो भारत है। जब हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे, मैं यहां अभी दिल्ली सरकार में चेयरमैन हूं बस्ती विकास डिपार्टमेंट का, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो जब हम लोग ये सिलेक्शन कर रहे थे तो बहुत टफ था कि कैसे ये प्रतिभाएं, जहां गांव में आज भी रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां ये लोग पहुंच गए। जहां गांव में आज तक सड़कें नहीं जा पाती है, वहां ये संस्थाएं पहुंच रही हैं और वो प्रतिभाओं को निकाल रही हैं। यही तो सुनहरा भारत है, यही हमारा भारत है। आज जब ये दिल्ली से फोटो जाएगा, आप लोगों के गांव में, आप लोगों के इलाकों में, आप लोगों के लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, तो वो गर्व करेंगे कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा दोस्त आज दिल्ली जाकर सम्मान पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोगों को भी ये काम, ये आयोजकों पर भी अब एक बहुत जिम्मेदारी है कि हम लोग ये भी कोशिश करें कि और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाएं आए। हमारे आदरणीय विधायक जी जो उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट भी हैं, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो है वो ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। ये तो आगे बढ़ाते रहते हैं। इनकी कृपा से इन्होंने हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब को गाजियाबाद नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप जो प्रतिभावान छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो देश के लिए खेलना चाहते हैं, उनको किसी तरीके की पैसे की, फंड्स की समस्या ना है, उसके लिए भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस जी भर के खेलिए। भारत सरकार भारत की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए किसी तरीके की कमी नहीं रखेगी, इसकी गारंटी देने के लिए हम लोग यहां पर आपके सामने खड़े हैं। और नेक्स्ट ईयर से हम लोगों को अभी काम करना है, और हम लोग पूर्ण रूप से आपको यह विश्वास देना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर से जो अवार्ड सेरेमनी होगी, चाहे और कई हमारे कार्यक्रम होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, मैचेस होंगे, उसमें जितने हमारे युवा प्रतिभागी होंगे, उन सब लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां की संबंधित राज्य सरकारें और भारत सरकार के सहयोग से स्कॉलरशिप और फंड्स भी दिलाएं, ताकि वो खेलें, देश के लिए खेलें, देश के लिए जिए और देश का नाम ऊंचा हो। बस इसी मंच से आप लोगों का सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I want Sahil Sethji sir to welcome us with blessings. I require you to be on podium and enshine with us some few words.
Evening, everyone. So today we are here on National Sports Awards 2024. I welcome you all and my best wishes and heartiest congratulations for all the winners today, those who will be getting the awards tonight in the category of supports. So from my side, I will not hold up this evening by my comments or by my statements. So I request the host of the event tonight that they carry on this event ahead. And my best wishes and congratulations to all of you. Thank you. Thank you so much, Sri Sahil Sethji, Joint Commissioner, GST, Customs and Narcotics, for wishing us the luck. With jury for expressing their promises and gratitude to the sports. Now it is the most awaiting time because we'll be starting with the award ceremony. And the award categories are as follows. First, Jeevan Gaurav Award, President to veteran athletes who have contributed significantly to sports. Second, Parivartan Award for innovation and transformation in sports. And third, Udbhav Ratan Award for emerging talents who have shown promise. Fourth, Shakti Award recognizing the empowerment of women in sports. Fifth, Mahaguru Award honoring the best coaches for their contribution in the athlete training. Fifth, Yuva Shri Award recognizing the emerging youth athletes who have made a mark. मैं राणा अमर सिंह एंड अतुल राघव से अनुरोध करती हूँ कि वह मुख्य अतिथि को पुरस्कार वितरण के लिए आमंत्रित करें. जीवन गौरव अवार्ड, अजीत शर्मा एथलेटिक्स फ्रॉम स्टेट असम. Parivartan Award for this I'll call Shailesh Kumar Akari from state Uttar Pradesh. We are starting with the category Shakti Award presented to Arya Gaddi for Sarla Devi, Para Athletics, State Haryana for category Shakti Award. Richard Sharma, Athletics, State Maharashtra. Request all the awardees to come in this center and receive your awards. Yuva Shri Award, Akash Malik for Archery, State Haryana. Vanshu for Football, State Uttar Pradesh. Trisha Sharma for Karate, State Rajasthan. To ask Tamanna Kaushik for Yoga, State Haryana. Before we, many congratulations, Shubha. We're moving to our third category, which is Mahaguru Award. And for that, I request Nagarjuna for Kho-Kho, State Andhra Pradesh, to come and receive the award. Sandeep Nayak, Kho-Kho for State Gujarat. Arshay Laja, Yoga from State Karnataka. Om Prakash, Karate, State Rajasthan. I would like to thank all who received the Mahaguru Award. Now will be the last category, Udbhav Ratan Award. We have Shreyanshi Bhatti, skating from State Delhi. Thank you so very much and many congratulations to each one of you who has received the award for their noble contribution in the field of sports. And I'm sure each one of us sitting here blesses each one of you for your countless contributions in our field.
and I would like to express my greatest gratitude to everyone who has come far away to be in this event, and utmost gratitude to everyone. And our privilege is that we have a lot of chief guests today, and most of the awardees will be getting the award from them. So I would like to give the appreciation to them, and many, many congratulations to each one of you for being here.